Hello friends, welcome to my channel Ignu Genie and this is your BCHCT 133 पार्ट बी वीडियो जो कि ये पार्ट ए आपके पास अभी तक आ गया होगा, अपलोड हो गया होगा। नाउ आई एम अपलोडिंग पार्ट बी भी अब आपके पास आ रखा है। सो आप ये दोनों पार्ट्स को कवर करके जाएं अपने BCHCT 133 के एग्ज़ाम के लिए जो आपका 15 जून को है। अगर आप ये पार्ट भी देख रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू एक पार्ट ए भी है। प्लीज़ गो ऑन माई चैनल एंड वीडियोज़ पे जाके आपको पार्ट ए अभी फ्रेश मिल जाएगा बिकॉज़ वो अभी अपलोड हुआ है। एंड आपका एग्ज़ाम में दो पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में, एक फिज़िकल और एक ऑर्गेनिक। सो दिस इज़ योर ऑर्गेनिक पार्ट, फंक्शनल ग्रुप। ओके, so now first question is state Huckel's rule and we are covering the video fastly because हमारा एग्ज़ाम 15th को है। we have less time, you guys have less time to cover the questions and मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो। आप स्क्रीनशॉट लें, आप आंसर निकालें एंड यू गो एंड स्टडी। ओके, एंड आप इम्पॉर्टेंट टिप्स लेके जाए बस, कि मैं लास्ट में बता देती हूँ क्योंकि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या क्या आपको करना है वो आपको वीडियो में साथ साथ पता चलता चले जाएगा। एंड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट ये भी आपको पता लगेगा। बाकी दीज क्वेश्चंस आर मेजरली, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट Huckel's रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव दिस। Huckel's रूल आपको स्टेट करना है। एक्सप्लेन वाई बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर, बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्सप्लेन करना है बेंजीन एरोमेटिक क्यों होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्यों जाता है। स्ट्रेट रीजंस टू एक्सप्लेन वाई बेंजीन इज इलेक्ट्रो एरोमेटिक इन नेचर बट cyclooctatetrene is not. What are electrophiles? Give the structure of two electrophiles. Benzene undergoes substitution reaction even though it contains 3 double bonds. Give reason. Discuss in detail the mechanism of conversion of benzene to nitrobenzene. Why does p-chlorotoluene gives a mixture of p-amino and n-aminotoluene on reaction with sodamide? Write the reaction and name the intermediate form. Explain why chlorine is more easily substituted by nucleophile than in chlorobenzene. Why is Cl in C6H5Cl difficult to substituted by a nucleophile as compared to that in this? Which of the following is more reactive towards SN1 reaction and why? Methyl chloride or tert butyl chloride? Why do tert alcohols undergo SN1 reaction? Why do tertiary alcohols undergo SN1 and primary alcohols go SN2? Explain with a suitable example. Explain why T-butyl alcohol undergoes elimination reaction by E1 and N-butyl alcohol by E2 mechanism. Discuss Sedgwick's rule with the help of appropriate example. This is important, Sedgwick. And then now we have complete the following reactions. So basically ये reaction, all these reactions are very important. आपको इनका प्रोडक्ट पता होना चाहिए बिकॉज ये एग्ज़ाम में आती हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत इजी होगा स्कोर करने के लिए 5 मार्क्स का। कुछ आपको बेंजीन की भी आएंगी, वो मैं आपको नीचे अभी मैंने लिख रखी हैं, वो भी आएंगी। सो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस टू 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस टू दिस, हाउ इज बेंजीन कन्वर्टेड टू SF2 गिव द स्पेसिफिक नेम ऑफ द रिएक्शन। अब बेंजीन कैसे कन्वर्ट हो रहा है इसमें, इसकी एक रिएक्शन होगी जो कि आपको इसमें भी आ सकती है। ठीक है, नेम एनी 2 केमिकल यूज्ड एज कैटलिस्ट इन Friedel-Crafts रिएक्शन। Okay, we have so many questions now. Give IUPAC name and common name for this. What are crown ethers? Give an important use of crown ethers. Short notes लिखना है आपको crown ether पे। How starch converted into ethanol? Name enzymes for this conversion. Name the enzyme and its natural source which converts glucose to ethanol. Write appropriate example. Show that alcohol phenols are acidic in nature. Which of the two is stronger acid? Why are phenols acidic in nature? How will you prepare aldehyde from acid chloride, aldehyde from alcohol? How is benzyl aldehyde prepared from this? Discuss phenol rearrangement with mechanism. Write the mechanism for aldol condensation. Write short notes on aldol condensations. Why CH3CHO undergoes base catalyzed aldol condensation but not HCHO? आपको एल्डोल कंडेंसेशन के जो क्वेश्चंस हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड एल्डोल कंडेंसेशन आपको डायरेक्ट भी आ जाती है। व्हाट इज पिक्रिक एसिड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। राइट स्टेप वाइज द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। हाउ इज प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिटेक्टेड इन द लैबोरेटरी। आइडोफॉर्म टेस्ट आपको लिखना है।
ठीक है, आपको डिस्टिंग्विश करना है लेबोरेटरी टेस्ट बिटवीन दिस एंड दिस. एल्डिहाइड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. राइट प्रोडक्ट फॉर्म in reaction of this with this and this. Write 2 important esterification reactions of glycerol. Write the preparation of phenolphthalein and describe its use as acid base indicator. Why do phenolphthalein show different colors in acidic and alkaline medium? Write short notes on sulfonation of aromatic hydrocarbons, metadirect and deactivators, uses of alkyl halide. आपको एल्डोल कंडेंसेशन पे भी बोल सकता है, सेटजेफ रूल्स पे भी बोल सकता है, पिक्रिक एसिड पे भी बोल सकता है, और बेंजीन एसिडिक क्यों, मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया था बेंजीन एरोमेटिक नेचर में क्यों होता है, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों करता है, हैकल्स रूल के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर. आपको ये सारे टॉपिक्स पे वो शॉर्ट नोट्स लिखने को बोल सकते हैं. दीज आर इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ वी कम ऑन नेमिंग रिएक्शंस. आपको ये नेमिंग रिएक्शन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आएंगी ही आएंगी. इस फॉर्म में नहीं आएंगी तो आपको वैसे ही आ जाएंगी कि आपको पूरी रिएक्शन दे रखी होगी एंड देन आपको प्रोडक्ट बताना है उसका. ओके, बट दीज आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर ऑफ स्टेट कार्बन्स इन द फॉलोइंग. आपको इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है. सो बेसिकली आपका ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक्स मैंने बताए, जैसे कि एल्डोल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ओके, एंड पिक्रिक एसिड, बेंजीन एरोमेटिक क्यों होता है, ओके, और एस्टेरिफिकेशन ग्लाइसरॉल की उस पर भी आ सकता है, एल्डिहाइड कीटोन्स पे भी आ सकता है. ओके, देन आपका नेमिंग रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस रिएक्शंस कंप्लीट करना, एंड जितनी भी रिएक्शंस आपको बोलेगी कि बेंजीन से ये कन्वर्ट करो या इससे प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल कन्वर्ट करो, एंड देन नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है. ओके, देन आपको नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन आ जाएगी और आपको बोलेंगे प्रोडक्ट लिखो, तो प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए नाइट्रोबेंजीन है. ऐसे आपके पास रिएक्शंस आने वाली हैं एग्ज़ाम में कंप्लीट करने के लिए, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, ऐसे रिएक्शंस एंड ऑल. और बेसिकली केमिस्ट्री है तो आपको, जैसे कि आपको ये SN1 से SN2 से जितने भी क्वेश्चन हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रिपीटेड हैं बहुत बार, एंड बेंजीन के क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड हैं. बेंजीन के आपको रिएक्शंस आनी चाहिए, बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी भी क्वेश्चंस में बेंजीन की रिएक्शंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो आनी चाहिए. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. होप आपका शॉर्टेस्ट टाइम में ये कवर हो गया हो सारे क्वेश्चंस, एंड आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें अभी. ओके, वी डोंट हैव मच टाइम टू डिस्कस अबाउट इट, सो इसीलिए मैंने आपको फटाफट क्वेश्चंस दिखा दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं. आप प्लीज़ इनके आंसर फाइंड करिए एंड क्रैक योर एग्ज़ाम्स विद वेरी गुड मार्क्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब एंड कमेंट द नेक्स्ट टॉपिक कमेंट करके जाना, जो भी जिसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट, एंड इससे आपके पक्का 70% मार्क्स आ जाएंगे केमिस्ट्री में. डोंट वरी. ओके, जस्ट अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना. थैंक यू सो मच.